devotion to one god. They used the local or vernacular languages which were understood by all. This led to the revival of many regional languages and the growth of some new languages that developed due to the intermingling of cultures. Ashima, your sound is not coming to me. Yes, sir. आशिमा आपकी साउंड नहीं ऑडिबल है मुझे. Regional and new languages. As the Bhakti movement spread all across India, Bhakti saints used the regional languages to propagate their message. Surdas and Tulsidas used the bridge and Awadhi forms of Hindi to teach. Guru Nanak, the first Sikh Guru and a popular Bhakti saint, propagated his teachings in Hindi and Punjab. Ramanuja used Tamil. Next is Kriti 1251. Students, I am audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. No, many students. Sajal 3295. Sajal Yes. 3295. Sajal, first topic, development of regional and new languages. Yes, sir. As the Bhakti movement spread all across Indian Bhakti saints used regional language and propagated their message Propagate. to the Languages to propagate their message. languages to propagate their messages. Surdas and Surdas Tulsidas and used Tulsidas. Surdas and Tulsidas used to bridge and Awadhi from Abdi. Hindi to teach. Avdi from Hindi to teach. Guru Nanak, the first Guru Sikh and popular Bhakti saint in progress. Ramanuja used Tamil. Then Ashwar, a Bhakti saint from Maharashtra, used Marathi. And Chaitanya Mahaprabhu used Bangla. Other regional languages that developed during this period were Odia, Sindhi, Kannada, Telugu, Malayalam, and Gujarati. Okay, Sejal, I think left hogi class se. Okay, next is Arushi 2460. Yes, sir. Arushi, same topic. First one. Sir, starting से. Yes, starting se. As the Bhakti movement spread all across India, Bhakti saints used regional languages to propagate their message. Surdas and Tulsidas used the Barij and Awadhi forms of Hindi to teach. Guru Nanak, the first Sikh Guru and a popular Bhakti saint, propagated his teachings in Hindi and Punjabi. Ramanuja used Tamil. Danyaneshwar, a Bhakti saint from Maharashtra, used Marathi, and Chaitanya Mahaprabhu used Bangla. Other regional languages that developed during his period were Odia, Assamese, Sindhi, Kannada, Telugu, Malayalam. Kannada. Okay, Sindhi and Kannada. Kannada नहीं है ये, कन्नड़. कन्नड़ कहते हैं इसे. Kannada, Telugu, Malayalam, and Gujarati. Another major development of this period was the growth of Hindi, which later came to be known as Urdu. Amir Khusrau was a poet who wrote in Hindi or Urdu for the first time. This language was a mixture of the existing from the form of Hindi, Persian, and Turkish. As a result, these languages developed
as strong regional languages, and a great deal of literature in prose and poetry was written in these languages. Sanskrit remained a scholarly language and was limited to the scholars. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद दिस वन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, तो हमने लास्ट में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है, ओके, तो वो क्या बिलीव करते हैं, सेंट्स क्या बिलीव करते हैं। ओके, तो सेंट क्या बिलीव करते हैं, विद द यूनिटी ऑफ गॉड, ओके, एंड बिलीव इन वन गॉड हु इज ऑल पावरफुल एंड ऑल परवेसिव। ओके, तो सभी सेंट्स तो ये बिलीव करते थे। ओके, सिंस द भक्ति सेंट्स वांटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द यूनिटी ऑफ गॉड, तो जितने सेंट्स थे इनका सभी का ही एक मोटिव था कि हमने ये मैसेज स्प्रेड करना है, दैट द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिवोशन टू वन गॉड अमंग ऑल द पीपल। ओके, सो दे यूज द लोकल और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ओके, तो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की, जो लोकल और जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, मैक्सिमम सेंट्स ने वही यूज की। ओके, ताकि ये सभी क्या कर सके, ये अच्छे से स्प्रेड कर सके, इस मैसेज को वो सभी फुली स्प्रेड कर सके। सो दिस लेड टू द रिवाइवल ऑफ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड द ग्रोथ ऑफ सम न्यू लैंग्वेजेस दैट डेवलप ड्यू टू द इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चर्स। ओके, तो उस टाइम काफी न्यू लैंग्वेजेस काफी डेवलप्ड हुई। कैसे डेवलप्ड हुई, बाय इंटरमिंगलिंग। ओके, इंटरमिंगलिंग मींस कि आपस में इंटरमिक्स, जो उनके कल्चर्स था, जो लैंग्वेज थी, वो सभी आपस में इंटरमिक्स हुई हो। ओके, सो डेवलपमेंट एंड रीजनल एंड न्यू लैंग्वेजेस, तो कौन कौन सी ऐसी रीजनल एंड न्यू लैंग्वेज डेवलप्ड हुई। सो एज द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया, भक्ति सेंट यूज्ड रीजनल लैंग्वेजेस टू प्रोपोगेट देयर मैसेज। तो सभी भक्ति सेंट्स ने क्या किया, जो रीजनल लैंग्वेज थी, जो लोकल लैंग्वेज थी, उन सेंट्स ने उन सभी को यूज किया ताकि वो अपने मैसेज को वो अच्छे से वो प्रोपोगेट कर सके। सो अब सभी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ये सेंट्स के नेम है, सभी ने अच्छे से लर्न करने हैं ये। ओके, सो सूरदास एंड तुलसीदास यूज ब्रिज एंड अवधी फॉर्म्स ऑफ हिंदू टू टीच। ओके, तो सूरदास और तुलसीदास ने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया, ब्रिज एंड अवधी। एंड ऑल्सो गुरु नानक, द फर्स्ट सिख गुरु and a popular bhakti saint, propagate his teachings in Hindi and Punjabi. तो गुरु नानक ने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया, हिंदी एंड पंजाबी। एंड ऑल्सो रामानुजा यूज तमिल। ध्यानेश्वर, अ भक्ति सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, तो सभी ने लर्न करना है कि ध्यानेश्वर कहाँ से थे, फ्रॉम महाराष्ट्र। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया, मराठी। एंड चैतन्य महाप्रभु यूज बांग्ला। एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस दैट डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो और भी लैंग्वेजेस थी जो कि इस पीरियड के टाइम में काफी डेवलप्ड हुई। तो दीज आर उड़िया, असमीज, सिंधी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड गुजराती। ओके, तो ये सभी लैंग्वेज काफी उस टाइम काफी डेवलप्ड हुई और काफी स्प्रेड हुई है। Another major development of this period was the growth of Hindi. ओके, तो इस पीरियड में क्या होता है, काफी एक मेजर डेवलपमेंट थी, वो थी द ग्रोथ ऑफ हिंदी लैंग्वेज, विच लेटर केम टू बी नोन एज उर्दू। ओके, तो बाद में इसको क्या नेम दे दिया गया, उर्दू। एंड अमीर खुसरो वाज अ पोएट हु रोट इन हिंदी और उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आस्क कर ले कि हु यूज्ड द फर्स्ट हिंदी और उर्दू लैंग्वेज, so it's Amir Khusro. And this language was a mixture of existing form of Hindi, Persian and Turkish. Okay, तो ये लैंग्वेज किससे बनी थी, की लैंग्वेज को मिलकर के बनी थी, so it's Hindi, Persian and Turkish. So as a result, these languages developed as a strong regional languages, and a great deal of literature in prose and poetry was written in these languages. Okay, तो उन्होंने क्या किया, जितने भक्ति सेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जो उनकी लिटरेचर थे, so prose and poetry, तो कौन सी लैंग्वेज उन्होंने यूज की रिटन राइटिंग के लिए, इट्स ओके, जितनी ये लैंग्वेजेस हैं सभी उन्होंने यूज की, लाइक हिंदी, पर्शियन, टर्किश मींस हिंदवी, उर्दू भी उन्होंने यूज की, बांग्ला भी यूज की, मलयालम, गुजराती, सभी लैंग्वेज उन्होंने यूज की ताकि वो अपने अपने जो लिटरेचर है, प्रोज एंड पोएट्री को उन्हें रिटन फॉर्म में राइट कर सके उन्हें। So Sanskrit remained a scholarly language and was limited to the scholars. Okay, लेकिन जो संस्कृत लैंग्वेज थी ये काफी लिमिटेड ही रही है, काफी लिमिटेड है स्कॉलर्स के पास, ये इतनी अच्छे से स्प्रेड नहीं हो सकी संस्कृत लैंग्वेज। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ने ये जो लैंग्वेजेस हैं सभी ने
लर्न करनी है, ओके, कि कौन से भक्ति सेंट ने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया था, ओके, टू प्रोपोगेट देयर मैसेज। और मैसेज क्या था? यूनिटी ऑफ गॉड एंड significance of devotion to one God among all the people. So they used the local or vernacular languages which were understood by all. तो उन्होंने उन्हीं लैंग्वेज को यूज किया जो लोकल रीजनल लैंग्वेज थी, ताकि जितने भी पीपल्स हैं सभी उसे अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहते हैं, ये जो भक्ति सेंट्स हैं ये क्या क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेज को ही सभी ने उनको अच्छे से यूज किया उन्होंने। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन कौन से भक्ति सेंट ने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया था। सो सूरदास एंड तुलसीदास यूज ब्रिज एंड अवधी forms to Hindi to teach. Guru Nanak used Hindi and Punjabi. Ramanuja used Tamil. Dhanashwar used Marathi. Chaitanya Mahaprabhu used Bangla. Okay, and Amir Khusro used Hindavi or Urdu. And Hindavi language was a mixture of Hindi, Persian and Turkish language. Clear? यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि what does this mean development of regional and new languages? किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से न्यू लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर इन उर्दू, पर्शियन एंड हिंदी। कि जो लिटरेचर उस टाइम बनाए उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की उन्होंने? उर्दू, पर्शियन एंड हिंदू। ओके, हिंदी। सो क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्स लाइक अल ब्रूनी, ज़ियाउद्दीन बरानी एंड मिनहाज उस सिराज। ओके, तो इन्होंने जो अपनी बायोग्राफी जो इन्होंने रोट की हैं, जो रूलर्स की इन्होंने बायोग्राफीज को राइट किया इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज में, कौन कौन सी ऐसे क्रॉनिकल्स थे? अल ब्रूनी, ज़ियाउद्दीन बरानी एंड मिनहाज उस सिराज रोट द बायोग्राफीज एंड क्रॉनिकल्स ऑफ द सुल्तान्स इन पर्शियन। तो इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया? पर्शियन लैंग्वेज को। ओके, जो कि इन्होंने सुल्तान्स की बायोग्राफीज इन्होंने राइट की इन पर्शियन लैंग्वेज। एंड ऑल्सो many poets and writers of that period wrote in various forms of Hindi such as Avdi, Brij and Maithili. And Malik Muhammad Jayasi wrote Padmavati in Hindi. Okay, तो आपने पद्मावत आपने मूवी भी देखी होगी आपने, तो किसने राइट किया था इसे? हिंदी में राइट किया था इस पद्मावती बायोग्राफी को मलिक मोहम्मद जैसी ने। एंड ऑल्सो तुलसीदास wrote रामचरितमानस इन अवधी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस से उसने राइट की, कौन सी लैंग्वेज में राइट की? इन अवधी। एंड विद्यापति wrote poems in मैथिली। मीराबाई also wrote her famous भक्ति poems dedicated to Lord Krishna in हिंदी। तो मीराबाई ने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया था? हिंदी लैंग्वेज को। ओके, ताकि जो उसकी भक्ति पोएम्स हैं डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, तो उसने हिंदी लैंग्वेज का यूज किया था मीराबाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. ओके, एंड साथ में आपको इमेज में आपको दिया गया यहाँ पे कि धनेश्वर अ भक्ति सेंट फ्रॉम द महाराष्ट्र रोट धनेश्वरी अ कमेंट्री ऑन भगवत गीता एंड अमृतनुभव। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Yes, सभी sir. स्टूडेंट्स ने ये सभी लर्न करने हैं कि कौन से भक्ति सेंट्स ने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया था। ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज लिटरेचर इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। कि साउथ इंडियन लैंग्वेज को यूज करके कौन से लिटरेचर वहां पे राइट किए। सो नेक्स्ट इज वृति 2440। Yes, sir. हाँ वृति, you have to read last topic. Yes, sir. Literature in South Indian languages. South India also saw the rise of a number is writes who contributed to writing force, Kroti, etc. etc. In South India, languages such as Tamil, Telugu, Kannada, and Telugu. Malayalam. Tamil, Telugu and Kannada. Okay, Kannada. And Language name is Kannada, not Canada. Okay, Kannada and Malayalam. Kannada and Malayalam. Jaidev Malayalam. composed famous Get Govindam. Another Bhakti Singh Ramojai wrote
or wrote a commentary on Wrote his commentaries. Brahmasutra in Tamil. Okay, Preeti, it's another Bhakti saint. Ramanuja wrote his commentaries on Brahma Sutra in Tamil. Yes, Preeti, next. Omgravasha, one a king, was a Amok etymologist. Varsha. Preeti, it's Amok Varsha. Amovarsha, one is a king, was a accomplished soldier Accomplished. and wrote Karavigrama and Kanda in Kanda and Preeti, it's and wrote Kavi Raja Marga. Okay, Kavi Raja Marg in Kannada. Kannada and Parashmotra Ramalika in Sanskrit. Ratna Malika. Ratna Malika in Sanskrit. Prashnotra. हाँ ओके वृति मैं रीड करता हूँ ओके इट्स कवि राजा मार्ग इन कन्नड़ एंड प्राशनोत्रा रत्ना मलिका इन संस्कृत Krishna Deva Rai, the famous ruler of Vijayanagar, wrote another poet Srinada wrote a devotional poem composed in honor of Lord Shiva, Haravilasa in Telugu. Though there were constant political changes throughout the country, the development of literature, language, and the intermixing of culture continued to happen throughout this period. ओके तो इसमें काफी डिफिकल्ट वर्ड हैं जो यूज हुए हैं लाइक गीत गोविंदम एंड ब्रह्मा सूत्रा अमोघ वर्षा कवि राजा मार्गा इन कन्नड़ प्राशनोत्रा एंड रत्ना मलिका इन संस्कृत Krishna Devaraya, the famous ruler of Vijayanagar, wrote Amukta Malayada in Sanskrit. Another poet, Srinada, wrote a devotional poem composed in honor of Lord Shiva, Haravilasa in Telugu. ओके तो ये जो लिटरेचर्स हैं वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में यूज हुई हैं ओके सो साउथ इंडिया आल्सो सो द राइज ऑफ नंबर ऑफ राइटर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू राइटिंग प्रोज एंड पोएट्री इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सच एज तमिल तेलुगु कन्नड़ एंड मलयालम ओके तो सभी स्टूडेंट्स ने लर्न करने की साउथ इंडिया की कौन कौन सी लैंग्वेज हैं लाइक तमिल तेलुगु कन्नड़ एंड मलयालम ओके क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को ये मैं जरूर बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज स्पीक की जाती है ओके लाइक तमिल तेलुगु कन्नड़ एंड मलयालम ओके किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हमारी मैथ प्रैक्टिस की क्लास होगी तब हम डिस्कस करेंगे कि जो साउथ इंडियन हैं वहाँ पे लैंग्वेज की जाती है जैसे तमिल जो स्पीक ओके तो हम डिस्कस करेंगे ओके तेज होती है आंध्र प्रदेश में होती है कर्नाटक में मतलब इन कन्नड़ी एंड इन एंड ने काफी फेमस किया था गीत गोविंदम ओके गोविंदम मीन डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा ओके लॉर्ड कृष्णा के लिए काफी डेडिकेट किया था ये तो गीत गोविंदम मीन्स डेडिकेटेड टू गॉड लॉर्ड कृष्णा एंड अनदर भक्ति सेंट रामानुजा wrote his commentaries on Brahma Sutra in Tamil. And Amog Varsha, first a king, was an accomplished scholar and wrote Kavi Raja Marg in Kannada and Prashnotra Ratna Malik in Sanskrit. Krishna Devaraya, the famous ruler of Vijayanagar, wrote Amukta Malayada in Sanskrit. Another poet, Shrinada, wrote a devotional poem composed in honor of Lord Shiva and Haravilasa in Telugu. ओके तो सभी स्टूडेंट्स ने ये सभी लर्न करने हैं ये ओके तो आपकी चैप्टर आज कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कल हम सभी आपकी जो चैप्टर के जो डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक में वो क्लियर करेंगे
ओके तो जो आज हमने अभी स्टडी किया सभी स्टूडेंट को क्लियर है? देखो इसमें कुछ नहीं है आज की स्टडी में, सिर्फ आपको फैक्चुअल फैक्ट्स हैं जो कि आपको एज इट इज ही लर्न करने हैं आप सभी को ही। ओके ये काफी फैक्चुअल फैक्ट्स है ये। ओके एंड ऑल्सो इन साउथ इंडियन लैंग्वेज को जब उन्होंने यूज किया भक्ति सेंस ने तो कौन से लिटरेचर उन्होंने राइट किए। ओके फैक्चुअल फैक्ट्स हैं ये आपको सभी को एज इट इज लर्न करने हैं आपको। ओके जो इसमें मेन जो भक्ति सेंस था मेन वर्क क्या किया उन्होंने एंड लोकल लैंग्वेज है वो पीपल्स के बिटवीन में काफी अच्छे से वो स्प्रेड हो सके। अगर पीपल्स को भक्ति सेंट्स की जो लैंग्वेज है अगर पीपल्स को मालूम ही नहीं होगा कि भक्ति सेंट क्या कह रहे हैं तो वो किस तरह से मैसेज उनका स्प्रेड होगा। ओके तो उन्होंने भक्ति सेंट्स ने क्या किया जो लोकल और रीजनल लैंग्वेज थी उन्होंने वही उन्हीं को यूज किया ताकि जो उनका मैसेज है वो अच्छे से स्प्रेड हो सके वो। ओके और भक्ति मूवमेंट था उसने सोसाइटी में काफी चेंज वो लेकर आया था। ओके चेंज क्यों लेकर आया था क्योंकि उस टाइम काफी सारा कास्ट सिस्टम प्रेजेंट था इन इंडिया। ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स कास्ट पीपल को काफी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। लेकिन जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है तो जो कास्ट सिस्टम था उसमें काफी इफेक्ट पड़ता है। पहले जो पीपल्स थे काफी बिलीव करते थे इन द कास्ट लेकिन अब वो कम बिलीव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड ऑल्सो भक्ति मूवमेंट आल्सो रिड्यूस आइडल वर्शिप एंड रिचुअलिज्म among the Hindus and made the religion more liberal. ओके तो यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes. ओके उससे पहले हमने एक टॉपिक हमने और डिस्कस किया था लाइक द सूफीज। ओके स्क्रीन शेयर कर। ओके क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके द सूफीज तो सभी स्टूडेंट्स ने लर्न करना है द वर्ड सूफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड सफा व्हिच मींस प्योर and the Muslim saints who lived a life of purity and urination were called Sufis. Sufis were great devotees of Allah but were unhappy at the moral decline of Islam after the establishment of the Islamic Empire. So they were influenced by the philosophies of the Bhakti cult. Okay, इस टॉपिक में जो लास्ट लाइन है द सूफीज में ये काफी इंपॉर्टेंट वन है। Sufism attracted a large number of Hindus, especially from the lower caste, to Islam, and as it gave them the message of equality among all human beings. Okay, क्योंकि जो सूफीज थे जब सूफिज्म आया था इन इंडियन कंट्री में तो ये क्या करते थे ये पीपल को ऑल ह्यूमन बींग्स को इक्वल ट्रीट करते थे। लेकिन जो हिंदू थे हिंदू में क्या था काफी कास्ट सिस्टम चलता था इन हिंदू। तो जो लोअर कास्ट के जो पीपल्स थे वो काफी उन पीपल को काफी डिस्क्रिमिनेट किया जाता ऑन बेसिस ऑफ देयर कास्ट। तो उन पीपल ने क्या किया जो लोअर कास्ट के पीपल थे वो सभी इस तरफ मूव हो गए। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरफ चले जाएंगे तो हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है बहुत कम होगा वो। ओके मींस कम नहीं होगा ही नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो सूफिज्म था उनका मेन मोटिव ये था उनका मेन कॉज ये था कि दे बिलीव इन ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ओके तो इसलिए जो लोअर कास्ट के पीपल थे वो सभी उसकी तरफ वो सभी अट्रैक्ट होते हैं वो और सभी मैक्सिमम सूफिज्म को ज्वाइन करते हैं सभी। ओके मैक्सिमम लोअर कास्ट पीपल्स। क्लियर? अब मुझे बताओ किसी स्टूडेंट को डाउट है? ओके कल से हम इस चैप्टर की कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके और आज आपका टेस्ट भी है इसी चैप्टर का टेस्ट है आप सभी का ही। ओके और आपको ऑब्जर्वेशन कि आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको। ओके सभी ने टेस्ट अटेम्प्ट करना है सभी अच्छे से अपने टेस्ट देना है आपने। ओके क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन आंसर हमने पहले ही हम ऑलरेडी हम उनको कंप्लीट कर चुके हैं हम उन्हें। ओके ये कुछ टॉपिक रह गए थे जो हमने आज कंप्लीट कर लिए हमने। ओके सो इस टाइम योर अटेंडेंस आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं अब। तो सबसे पहले फर्स्ट आइए सारव। सर इंटरमिक्सिंग का सर मीनिंग क्या होता है? हाँ इंटरमिक्सिंग का मीनिंग है कि अगर आप किसी भी टू और मोर थिंग्स को अगर आप आपस में उनको इंटरमिक्स करेंगे आप उन्हें। ओके
अगर आप दो तीन चीजों को अगर आपस में मिक्स करेंगे तो उसे इंटरमिक्सिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है इंटरमिक्सिंग, वो यूज हुआ है कल्चर्स के लिए, कि काफी सारे जो दो तीन जो कल्चर्स थे जो सोसाइटी में प्रेजेंट थे, वो सभी आपस में वो मिक्स हुए। यस सर। ओके, हाँ, तो इट्स नॉट इज इंटरमिक्सिंग मीन्स इंटरमिंगलिंग। ओके, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स। ओके, तो वहां पे क्या किया कि जो दो तीन कल्चर्स ने मिलके जब आपस में वो मिक्स हुए दो तीन कल्चर्स, तो वहां से एक नई लैंग्वेज वहां से डेवलप हुई। ओके, लाइक हिंदवी। ओके, लाइक हिंदवी, हिंदवी लैंग्वेज जब डिस्कवर हुई, जब डेवलप हुई है, तो कौन कौन सी लैंग्वेज से मिलकर बनी थी वो? लाइक हिंदी, पर्शियन एंड टर्किश। ओके, तो वहां से हिंदवी लैंग्वेज डेवलप हुई। क्लियर? यस सर। सर